Yes, please do. Very good morning, children. As a part of preparation, today we will do scene passages and we will practice few passages for better understanding of how to solve the scene passages. Okay, first we'll see the types of question. So this passage will be related to reading skill, vocabulary, and grammar. And one more question you will have personal response. In textual passages, you will have passages. In question number 2, A and B. Each passage will carry 10 marks, so total 20 marks. Now we'll see the types of questions. First will be your simple factual question. Second, complex factual. Third will be related to vocabulary. Fourth, do as directed, means your grammar part. And last is your personal response question. So for solving this type of questions, we need to understand few techniques. Which are those techniques? These techniques are related to the reading part. So before getting the answers, we need to understand the passage. So there are two types of technique for reading scene passages. Scene passages हम familiar होते हैं, इसलिए ये दो techniques हम लोग use कर सकते हैं. The first one is your scanning. Scanning means to find specific facts. हमारे जो first question होता है A1, that question is of simple factual question. So facts हमको ढूंढना रहता है. Facts मतलब जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें हमें अपना खुद आंसर कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है. ओनली वो फैक्ट्स सिलेक्ट करके हमें आंसर लिखना होता है. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कैनिंग. स्कैनिंग क्या होता है? हम जब भी पैसेज रीड करेंगे so quickly we will try to find out the words, important words, keywords जो पैसेज में दिए गए हैं. So second is your scheming. Scheming is also one part of reading which gets an general overview. Means while we will read the passage, we will understand with the help of key points or events about the whole passage. We will practice and then we will come to know about these two techniques. So the first passage. Okay. So here the first passage is scene passage. Read the following passage and complete the given activities. 10 marks. The first activity A1. Simple factual activity है ये. Complete the following web chart. So question क्या है? ये web charts है. 4 blanks दिए गए हैं. हमें ये fill करना है. और यहाँ पर क्या fill करना है हमें? Things learned from ants. Okay. So हमें ऐसे lessons ढूंढने हैं पैसेज में से जो हमने ant से सीखे हैं. तो स्टूडेंट्स अभी आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो पैसेज है एल्केमी ऑफ नेचर जो हमारा टेक्स्ट बुक में लेसन दिया गया है, प्रोज दिया गया है, वहां से लिया है. सो विल रीड द पैसेज. वी सॉ स्मॉल bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. So in the first passage, we have studied about the grass. Second, we saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over, but 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that, however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. So, in the second passage, we came upon the facts related to a tree which is bare of all its leaves. Now, next, we saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times. So we got our passage
कि हमारा जो आंसर है एंड्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमें वो लेसन्स मिलेंगे जो हमने एंड्स से सीखे हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail pillars, and carried it to quite a distance. Their teamwork, perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate. So here I got my paragraph कि मुझे कहाँ से कहाँ तक वो पैराग्राफ में आंसर मिलेगा. So from here till focused. So here what is our question? हमें ऐसे lessons लिखने हैं जो हमने end से सीखे हैं. So here what is there? Teamwork, perseverance, consistent, organized and focused. These are the ideas which we get from ants. इसमें क्या दिया है? Ant जो है एक फ्लाई लेके जा रहा है जो 10 टाइम्स एंट की साइज से बड़ा है, 10 गुना एंट से वो बड़ा है. तो वो लोगों ने कैसे किया? बिकॉज टीम वर्क की वजह से सब लोग इकट्ठे मिलके काम किए. सो उन्होंने वो जो फ्लाई को लेके जाना था वो उनके लिए पॉसिबल हो गया. तो ये जो लेसन्स है, टीम वर्क, परसिवरेंस, कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड, तो ये हमें ये बॉक्सेस में लिखने हैं. तो हमारा जो फर्स्ट हो गया एक्टिविटी स्कैनिंग के थ्रू कंप्लीट हो गया. So A1 activity complete. Now next, match the pairs with the suitable answers. So यहाँ पर match the pair दिया गया है. In the column A, we have natural things: wind, oysters, bits of grass, trees bare of leaves. और इसमें उसके lessons दिए गए हैं. Problems are not permanent. Nothing is impossible. No gain without pain. Unhindered passion. Be persistent. Okay, now we'll find out those words and we will underline the lessons learned from the natural things. So हमने first में पढ़ा था small bits of grass. क्या lesson सीखा हमने? However impossible things may look, there is always an opening. Means nothing is impossible. Okay, so here I got my first point. अभी हम पहले चेक करेंगे, मैच करेंगे, फिर हम देखेंगे क्योंकि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है. तो विल सी, वी विल चेक अगेन आवर आंसर. नेक्स्ट पैसेज अभी मैंने पढ़ा था. सो वी गॉट आवर नेक्स्ट कीवर्ड ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स. सो हियर फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव लर्नड, however difficult things are right now, it will not remain so forever. मीन्स प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होते हैं. रिमेंबर दिस टू शैल पास. वो जो ट्री का जो टाइम था उसके 3 months के बाद उसमें ग्रीनरी आ गई, फ्लावर्स आ गए, बर्ड्स आ गए वहां पर ट्रीज पर. सो ऐसे ही लाइफ के जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे पास हो जाते हैं. So here we learned the next about trees bare of leaves. So problems are not permanent. We got our second answer. Now the third, and wind and oysters. So we had completed till here, till ends. Okay, now we will continue with the next. Spider webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take in grain of sand. They open up with a pearl. So here, oyster. Next, innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. So here I got my next word, unhindered passion. So for wind, here for bits of grass. Third, problems are not permanent. Fourth, unhindered passion first. Okay, and your oyster is your second, because here
nothing is given related to no gain without pain. Now we'll see the next question, A3 activity. Complete the table with the appropriate words from the brackets. So here we have 4 words: innumerable, lugging, ego, and consistent. All these words are from your passage, and we have to write down these words. Which word will fall under noun, verb and adjective. हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन है, आइदर वर्ब और एडजेक्टिव, जो भी है. तो इसका आंसर अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनन्यूमरेबल, okay, able, so this is your adjective. Lugging, ing form of your main verb, lug, so this is your verb. Ego, this is noun. Consistent, this is adjective. Now ये तो मैंने आपको बताया, but if you are not able to get your answer, we can take help of our passage, क्योंकि ये सारे words passage में दिए गए हैं. So with the help of the sentences we can understand. Let's see. So our words, क्या क्या हमारे words से? Innumerable, lugging, ego, and last word, consistent. Here related to ant. Okay, so here we saw an army of ants lugging a fly. So here lugging क्या है? Verb है. कैसे पता चला? Because ants ने ये action किया है, कैरी करने को, फ्लाई को अपने बैक पे कैरी किया है, तो ये लगिंग वर्ड यूज किया है. तो ये हमारा वर्ब है. नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ, व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड. हाउ, जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसका आंसर हाउ से आता है. तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो ये हमारा हाउ का आंसर दे रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज योर एडजेक्टिव. नाउ वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो. ईगो यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. तो जो हमारा नाउन होता है वो आइदर सब्जेक्ट और या तो ऑब्जेक्ट होता है. सो यहाँ पर ईगो क्या है? ऑब्जेक्ट. और जो नेक्स्ट है, इन्यूमरेबल स्टार्स. स्टार्स क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन को ये नाउन के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. दैट्स वाई ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. तो विद द हेल्प ऑफ पैसेज ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन मेक आउट कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स या वर्ब्स क्या होते हैं. नाउ डू एज डायरेक्टेड. व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर. नाउ यहाँ पर दिया गया है हमारा इंस्ट्रक्शन, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है. इट मीन्स ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. सो फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने के लिए आएगा, अंडरलाइन करने के लिए आएगा, और सेकेंड आपको उसकी काइंड पहचानना है कि टाइप कौन सा है, आइदर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लॉज है. सो विल सी. व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर. ना हियर पहले हम देखेंगे 2 सेंटेंस कौन से हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ खत्म होता है. ओके, दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस और ये मेरा सेकेंड सेंटेंस है. तो यार वी क्या है? सब्जेक्ट. एक्सपीरियंस आपका वर्ब है, तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया. सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर आ गया मेन क्लॉज. ना हियर व्हेन वी सी, यहाँ पर ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है. नाउ व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, यहाँ पर क्या है? एक टाइम स्पेन दिया गया है. क्या टाइम स्पेन दिया गया? उसमें ये बताया गया कि कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बनता है. तो ये टाइम के बारे में बता रहा है, ये एक्शन के बारे में बता रहा है. सो दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज. अभी एडवर्ब क्लॉज में भी क्या है? ये टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. सो अगर आपने ये अंडरलाइन किया और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा तो आपको 1 मार्क मिलेगा. और अगर आपने उसके काइंड को बताया, टाइप्स बताया, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव या
एडवर्ब क्लॉज, तो आपको 1 मार्क वहां पर मिलेगा। नेक्स्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस एड स्पाइस टू आवर लाइफ। नाउ स्पाइस मतलब इंटरेस्टिंग, यहाँ पर स्पाइस का जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है मतलब इंटरेस्टिंग है। तो हमारी लाइफ में जब भी डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बिकॉज डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कुछ डिफरेंट करने का लाइफ में। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो हम लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते लाइफ में। तो इसके बेस पे आपको अपने ओन व्यू पॉइंट्स लिखना है कि आपके क्या इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। So we have discussed the first passage, students. Now we'll see how to present our answer in question paper. Now next, here I have written these lessons which we learned from the ant. हमारे टेक्स्ट में क्वेश्चन में ओनली 4 बॉक्सेस थे, बट आई हैव इंक्लूडेड ऑल द लेसन्स। सो हमारा जो हाफ मार्क एक आंसर के लिए है, तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। Wind, unhindered passion. Oyster, be persistent. Bits of grass, nothing is impossible. Trees bare of leaves, problems are not permanent. So here we got our 4 marks. ये हमारे 4 marks clear हो गए। Now we'll see the table. Noun, verb, adjective. So here ego noun है, lugging verb है, innumerable and consistent ये आपका adjective है। Now next is your clause, subordinate clause. When we see a caterpillar turn into butterfly, we experience the alchemy of nature. So here I have written the subordinate clause and then I have given its kind. फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है। नाउ विल प्रैक्टिस द नेक्स्ट पैसेज। Read the following passage and complete the given activities. State whether the following statements are true or false. Now here हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो हमें लिखना है। Steve Jobs loved to design computers. Okay. Steve Jobs started Apple company at the age of 20. Steve Jobs got fired from Apple at the age of 30. Steve Jobs got fired. The only way to do great work is to love what you do. So these are your sentences. अभी ये हमें sentences passage में ढूंढना है और हमें देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। My second story is about love and loss. I found what I love to do early in life was Steve Wozniak, and I started Apple when I was 20. So here something related to his work which he did when he was 20 years old. Okay, so Steve Jobs started Apple company at the age of 20. So यहाँ लिखा हुआ है I started Apple when I was 20. Okay, so ये आंसर हमें मिल गया। Now in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company, and then I got fired. It was devastating. Now here fired means job से निकाल देना है। Steve Jobs got fired from Apple at the age of 30. अभी यहाँ पर 30 years का एज का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट हमें कैसे पता चलेगा? इन 10 years, सो यहाँ पर 20 years में स्टार्ट किया था और उन्होंने 10 years वहां काम किया। देन ही गॉट फायर्ड, सो 10 + 20 30 years हो गया। तो जब ये 30 years के थे तो उन्होंने उनको एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया। ओके, नाउ बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डॉन ऑन मी। आई स्टिल लव व्हाट आई डिड एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years,
आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट। तो उनका जो नेक्स्ट कंपनी है, ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये कंपनी का नाम है। अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought Next. I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lauren and I have a wonderful family together. Okay? तो ये हमारा पैसेज में दिया गया है यहाँ पर। अभी what I love ये जो है ये बिगनिंग में दिया गया है। So he loved to design computers, क्योंकि यहाँ पर सब कंप्यूटर से रिलेटेड ही बातें की गई हैं। Okay, now next, the only way to do great work is to love what you do. Now here, I still love what I did. तो यहाँ पर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई लर्न इन माई अर्ली एज दैट वॉट आई लव, मुझे क्या करना पसंद है वो मुझे पहले ही पता चल गया था एट इन द अर्ली एज। So when he was 20, he started Apple company, then he started his next company, then Pixar. So all these statements are true. We'll see the next A2 activity, the most creative period of Steve Jobs' life. So after he got fired, here he said that the most creative periods of his life started after he got fired from his Apple company at the age of 30. So यहाँ पर लिखना है two companies started by him and fell in love with whom the world's most successful animation studio. Okay, so here I have here three questions. Hello ma'am. Hello ma'am. So I have here three questions और ये थ्री क्वेश्चंस में हमें 2 मार्क्स है। अभी वो 2 मार्क्स कैसे बाइफरकेट किया गया है, इसमें मुझे 2 कंपनी के नाम लिखना है, मतलब यहाँ पर हाफ और हाफ मार्क्स है। तो 1 मार्क का यहाँ है एंड फेल इन लव विथ वो पर्सन का नाम लिखेंगे तो हमें यहाँ हाफ मार्क मिलेगा एंड इसका आंसर लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक के पैसेज में दिया गया है। तो 2 कंपनीज उन्होंने कौन कौन सी स्टार्ट की, नेक्स्ट एंड पिक्सर, एंड फेल इन लव विथ लॉरेन, एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो कौन सा है उनका, now this is your answer. So Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought Next. So Pixar जो है कंपनी वो क्या है, एनिमेशन स्टूडियो है, वर्ल्ड की सबसे फेमस। So I got all my answers. Now we'll see the next A3 activity. Choose the appropriate idioms from the passage and complete the sentence. इसका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा हाई है बिकॉज हमें पैसेज में से idioms ढूंढने हैं और उसका फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ कंप्लीट करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेंटेंस है ये पैसेज में से नहीं दिया गया है, ये जो सेंटेंसेस है पैसेज में से नहीं दिया गया है, इसका सिर्फ आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। ओके, द स्पेस फर्स्ट है, आफ्टर अ ह्यूज फेलियर इन माय करियर आई मेड अप माय माइंड। तो हमारे जो फर्स्ट पैसेज था उसमें उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में बात की है कि वो कैसे वो कंपनी से उन्हें फायर किया गया, निकाल दिया गया। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे सेकंड जो पैराग्राफ है, बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डॉन ऑन मी
I still love what I did, and so I decided to start over. So after he got fired, फेलियर के बाद उन्होंने क्या माइंड में डिसाइड किया कि आई विल अगेन रीस्टार्ट एवरीथिंग. तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा. द स्पेस टेक्नोलॉजी इज डैश इंडिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम. तो ये जो सेंटेंस है इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है जो अपने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत उसका प्रोग्रेसिव रोल है. सो हियर एट द हार्ट, एट द हार्ट ऑफ, ओके, ये जो है ये आपका आइडियम वहां यूज होगा. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डोंट वरी अगर आपको ये आंसर नहीं आया है, बट बाकी आंसर्स अभी आपको कंप्लीट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है. डोंट लूज फेथ, बिगिन द सेंटेंस विथ यू आर. ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. ये इंपरेटिव सेंटेंस है. ओके, इंपरेटिव सेंटेंस है और हमें अभी बिगिन करना है यू आर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, आइदर वो कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा, ऑब्लिगेशन होगा. लूज फेथ, तो यहाँ पर ये क्या डिनोट करता है, एडवाइस. और अभी बोला है यू आर से स्टार्ट करना है, इसका मतलब ये आपका पैसिव वॉइस है. यहाँ जो हमें आंसर लिखना है वो पैसिव. सो अगर इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपको सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए वो आपको पता होगा, तो ये आंसर आपके लिए इजी होगा. सो यू आर एडवाइज नॉट टू लूज फेथ. Life hits you in the head with a brick. Add a tail tag. Tail tag, what is tail tag? Tail tag means your question tag. Question tag कैसे बनता है? Question tag हमें helping verb और मेन वर्ब से पता चलता है. अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वेल एंड गुड, हम तुरंत उसको पहचान के लिख सकते हैं. अगर मेन वर्ब है तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव लिखना रहेगा. अगर नेगेटिव सेंटेंस है देन वी हैव टू राइट पॉजिटिव टैग. ओके, टैग चेंज होता है. सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा. फर्स्ट हम लोग यहाँ पर वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. पहले हमें वहां ढूंढना है. लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक. नाउ हियर हिट्स, दिस इज योर मेन वर्ब. और ये मेन वर्ब क्या है, हिट्स मतलब डज. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, डज. सो दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो इसका टैग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव. तो डज क्या हो जाएगा, डजंट. डज में हमें क्या ऐड करना है, एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ नॉट, डजंट. ओके, एंड देन जो हमारा सब्जेक्ट है लाइफ, उसका हमें प्रोनाउन लिखना रहेगा. तो लाइफ का प्रोनाउन इट, एंड देन इन द एंड वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. दिस इज योर टाइल टेक. तो आंसर क्या होगा, कॉमा लिखना है, डजंट, इट and question mark. Now next is your personal response question. Which quality of Steve Jobs is highlighted in the passage? So here passage में स्टीव जॉब्स की कौन कौन सी क्वालिटीज को हाईलाइट किया गया है वो आपको लिखना है. ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, ये आंसर के लिए आप पैसेज की हेल्प ले सकते हैं. Now we'll practice, we'll see the answer. So here I have written the statement and I have written the answer. In this way I have completed my true and false. Students, please true and false के लिए आप statement जरूर लिखिए. Okay, so here we will get our 2 marks. The most creative period of Steve Jobs' life. So here 1 mark, half and half. So here we have completed 2 marks question. For this, I know students, this was little bit tricky and difficult, but it's okay. And the second one, A for activity grammar.
दिस वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई थिंक सो, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने ट्राई भी किया होगा सॉल्व करने के लिए, एंड दिस वॉज इजी. क्वेश्चन टैग इज वेरी इजी, so I hope you must have completed this part. And last is your A5 activity, your personal response question. Okay, now we'll see the next passage. Read the following passage and complete the given activities. Complete the following sentences. हमें सिर्फ sentence लिखना है, complete करना है. 18 years ago, we live. Let us inculcate and let us unite the world. हमें ये sentences अभी यहाँ passage में से ढूंढना है. We can do it. You may ask that, what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it, keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant, and she said, "I am doing my bit." So here in the first paragraph, story, ये जो आपका पैसेज है कैलाश सत्यार्थी का जो आपने पढ़ा होगा प्रोज, उसमें से लिया गया है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था. तो उन्होंने अपनी बचपन की स्टोरी बताई है कि जंगल में आग लग गई है, तो वहां पर सभी जो जानवर है वो वहां से भागते हैं, बट एक टाइनी बर्ड होता है जो क्या करता है, अपनी बीक में वाटर को लेके वो आग को एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना, तो वो उसको आग बुझाने की कोशिश करता है. तो हियर द फर्स्ट पैराग्राफ. तो 18 years ago, तो हमारा जो यहाँ पर 18 years ago, ये हमारा एक लाइन यहाँ पर मिल गया है. सो 18 years ago, let me underline that part. 18 years ago, millions of individuals marched across the globe. 18 years ago, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, मार्च इन द सेंस एक रैली थी, अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड. किस लिए? डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर अबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर जो है उसको अबॉलिश करने के लिए, कानून बनाने के लिए उन्होंने मार्च किया. मार्च इन द सेंस रैली निकाली. And it has happened, we did it, millions of individual did it. तो ये लोगों ने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट मार्च निकाला था. तो यहाँ पर वो हमें ये सेंटेंस लिखना है ना. इसमें एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डाउट होता है कि हाफ मार्क का क्वेश्चन है तो फुल स्टॉप तक लिखे या फिर एक वर्ड लिखना है. आपको आइडिया समझ में आना चाहिए. अब यहाँ पर दिया गया 18 years ago. सो अगर मैंने यहाँ तक सिर्फ लिख दिया 18 years ago millions of individual marched across the globe, मतलब बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल ने मार्च किया, बट क्यों किया ये पर्पस मुझे लिखना है. दैट्स व्हाई आई हैव कंटिन्यूड द लाइंस टिल हियर. एंड इट हैज हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट. मींस चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने के लिए कानून बना, तो सक्सेसफुल हो गया वो मार्च. तो मैं इसलिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है. नेक्स्ट, वी लिव. ओके, ना हमें भी और पढ़ना है. Friends, we live in an age of rapid globalization. I got my second. We live in an age of rapid globalization. ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड क्या हो गया है, एक मार्केट प्लेस बन गया है, कनेक्शन हो गया है. हाउ? वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. ओके, तो उस इंटरनेट का यूज से हम कैसे कनेक्टेड है? वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. ओके, so because of इंटरनेट से कनेक्शन होने की वजह से
हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज, एक एग्जांपल आप लेंगे, सिंपल एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वहां पर क्या होता है, उस वेबसाइट पे, उस ऐप पर आपको क्या मिलेगा, ऑल ओवर जो वर्ल्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको वहां पर दिखते हैं। सो हम अपने ही इंडिया में रह के दूसरे जगह की भी चीजें ले सकते हैं, या फिर अलग स्टेट की भी चीजें हम लोग ले सकते हैं। केरला से अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है तो हम कर सकते हैं। सो वी आर कनेक्टेड। नाउ विल कंटिन्यू। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. So this is one example कि हम कैसे कनेक्टेड है थ्रू फ्लाइट्स, कि हम तुरंत हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। बट देयर इज वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देयर इज लैक ऑफ कंपैशन। बट इतना कनेक्शन होने के बाद भी, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी, वी लैक कंपैशन। व्हाट इज कंपैशन? कंपैशन मीन्स दूसरे की सफरिंग्स, दूसरे के तकलीफ को समझना। Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. So here I got my next paragraph, next answer. Let us inculcate. क्या inculcate करना है? Globalization के थ्रू हमें global compassion inculcate करना है। Global compassion मतलब हम सिर्फ अपने ही नहीं, इस वर्ल्ड में जितने भी हैं, अगर उन्हें कोई सफर कर रहा है तो हमें उसको फीलिंग्स को समझना चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत ये पैंडेमिक में हम लोग देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। सो हमें सामने दूसरी जो कंट्री है वहां की कंडीशन हम देख के हमें तकलीफ होती है, दैट इज ग्लोबल कंपैशन। सिर्फ अपनी इंडिया के बारे में नहीं, हम दूसरी कंट्रीज को भी रिलेट करते हैं, उनके वहां के लोगों से हम रिलेट करते हैं जबकि हम उन्हें नहीं जानते। दैट इज ग्लोबल कंपैशन। ये जो फीलिंग है इसी को कहते हैं। सो लेट अस इनकलकेट and transform these individuals compassion into a global compassion. Okay, now next let us unite the world। अभी हमें नेक्स्ट ढूंढना है। Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with children. I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children. So here, let us unite the world through the compassion for our children. So कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या कहा है कि अगर हमें ग्लोबल कंपैशन की फीलिंग रखनी है तो एक उसका जो पर्पस हो सकता है वो बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। सो हियर आई गॉट माय ऑल दी 4 आंसर्स। ये आंसर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा बिकॉज पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, एज वेल एज हमें थोड़ा सेंटेंस कंप्लीट कॉपी करना है, सो इट विल टेक टाइम। नाउ विल सी द नेक्स्ट। लिस्ट डाउन द एग्जांपल्स कैलाश सत्यार्थी गिव्स टू शो हाउ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। वर्ल्ड एक पूरा इंटरकनेक्टेड कैसे है, उसके 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं इस पैसेज में। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था रैपिड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू ये पूरा वर्ल्ड जो है गुड्स एंड सर्विसेज का सिंगल मार्केट बन गया है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा था हमने। और नेक्स्ट जो हमारा है कि फ्लाइट्स के थ्रू एवरी डे हम कनेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। सो आई विल राइट those 2 points in the first and second question. Now we'll see the next. Complete the following table of antonyms. What are antonyms, children? Antonyms are your opposite words from the passage. अभी ये वर्ड्स है ना, ये पैसेज में नहीं है, बट इसका एंटोनिम, इसका जो आंसर है वो पैसेज में है। सो अभी हमें क्या करना है, ये ढूंढना है। लेट्स सी वर्ड्स कौन कौन से, पहले हम थोड़ा देखेंगे। बेस्ट, स्लो, ह्यूज एंड फ्री। सो वाइल आई वॉज रीडिंग मैंने कुछ वर्ड्स देखे थे जिसमें से ह्यूज का टाइनी हो जाएगा, ओके। सो ह्यूज का क्या हो जाएगा, टाइनी।
स्लो का हो जाएगा रैपिड, रैपिड मतलब वेरी फास्ट, ओके। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हॉस्टेज, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, विल सी। स्लो, बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट का आपको वर्ड्स मालूम है, बट वर्स्ट, वर्स्ट होता है उसका, सो वर्स्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पर दिया गया है। सो दीज आर योर एंटोनिम्स, आपके आंसर ये पैसेज में दिए गए हैं। लेट्स सी, डू एज डायरेक्टेड, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, रीराइट द अबव सेंटेंस एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपको क्लॉज समझ में आया है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके लिए इजी होगा। नाउ वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, एन एज, एन एज मतलब एरा, एरा मतलब टाइम फ्रेम, और वो टाइम फ्रेम क्या है, ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन का है, रैपिड ग्लोबलाइजेशन का। तो हम लोग लिख सकते हैं वी लिव इन एन एज विच इज ऑफ ग्लोबल, विच इज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। हाउ कैन यू डू इट, कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, मेक इट असर्टिव। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होता है उसमें असर्टिव होता है, declarative, assertive, imperative, okay, exclamatory sentence, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमें यहाँ असर्टिव बनाना है। असर्टिव का मतलब क्या होता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमें ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं दिया गया है, ओके। इसका पर्पस क्या है, सरप्राइज है एक। सो हाउ कैन यू डू इट जस्ट कीपिंग वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक। तो वहाँ जो टाइनी बर्ड की स्टोरी थी उसमें सरप्राइज किया है लायन ने ना, कि कैसे तुम छोटी सी चिड़िया हो और तुम एक बीक में अपना एक बूंद पानी से कैसे तुम फायर एक्सटिंग्विश करोगी। तो इसको असर्टिव लिखना है। सो यू कैन डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पर्सनल रिस्पॉन्स, एज अ स्टूडेंट व्हाट कैन यू डू टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम आवर कंट्री। इरेडिकेट मतलब नष्ट करना, खत्म करना, मिटा देना। सो चाइल्ड लेबर को कैसे आप खत्म करोगे एज अ स्टूडेंट। अभी इसमें कैसे आपके लेवल का क्वेश्चन है कि अभी आप स्टूडेंट हो, तो एज अ स्टूडेंट आप क्या स्टेप लोगे, आप अवेयर करोगे, ओके, बताओगे लोगों को इसके बारे में। स्कूल से भी एक्टिविटी कर सकते हैं, या रास्ते पे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से भी हम बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, तो आपको वहाँ ये सब पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करना है, ओके। विल सी द आंसर्स। तो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, हियर 2 पॉइंट्स हो गए। देन एंटोनिम्स हो गया हमारा, वी लिव एन एज विच से मैंने ये सेंटेंस को कनेक्ट किया है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नाउ यू कैन डू इट जस्ट इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, फुल स्टॉप। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव मतलब डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके। So with this we have completed today's lecture. We have practiced 3 sets of passages. Now students, if you have any doubt, please raise your hand and ask. Okay, महक, महक फातिमा, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मिस मिस हाँ, यस लक्ष्मी। मिस हमें क्वेश्चन बैंक करना है इंग्लिश का। यस, यू शुड प्रैक्टिस, बिकॉज मिस जितना, आप बोलिए। हाँ मिस आप क्वेश्चन बैंक लेंगे। ये जो मैंने अभी पैसेज लिया था, ये पैसेजेस आपके जो आपका वेबसाइट है, अपना स्टेट बोर्ड का वेबसाइट है, वहां पर ये प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं। मैंने ये पैसेजेस वहीं से लिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो अभी आपके पास जो भी अवेलेबल है मटेरियल, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके मिस। ओके, महक फातिमा, आपको कुछ पूछना है?
Sonu, Okay, ma'am. They are not asking. okay, okay, ma'am. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, students, for attending today's lecture. Thank you, ma'am.